Hello everyone, this is Shivraj Gurjar, and today we'll take up dependency and dependency of given functions. If there are two functions or three functions we have, and we have to see if they are linearly dependent or not, then how to see that, and how do we use a concept known as Wronskian to identify this. This is important in the sense that जैसे ही हम लोग differential equations solve करेंगे, so the solutions will be linearly independent. ठीक है, so that we have to check कि जो सॉल्यूशन हमारे आ रहे हैं दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन विल सी कि उनका जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल आल्सो बी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दैट combined with the particular integral will be the general solution of the given differential equation. We'll discuss all these concepts. So first let us discuss this. This is important even in linear algebra also, the same concept. ठीक है, here particularly our focus will be on differential equations. ठीक है, so linear dependence of functions. ठीक है, let y1 which is function of independent variable x, y2 which is also function of x, so on y and x are n functions of variable x then they are linearly dependent if there exist c1 comma c2 comma so on cn which are real numbers. In fact, if we are talking in the real number system, then we'll take them real numbers. If we are talking in complex number system, we'll take them complex numbers. This is as simple as this. ठीक है, they are linearly dependent if there exists c1 c2 cn constants which belongs to real number system such that c1 y1 plus c2 y2 so on plus cn yn equals to 0, and at least one ci is not 0, where I is of course 1 2 1 n. मीन्स हमारे पास जो c1 c2 एंड cn है, इसमें से एटलीस्ट वन कांस्टेंट ऐसा जरूर होगा जो कि 0 ना हो, देन ओनली विल से कि ये जो फंक्शंस है दे विल बी लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, सिमिलरली वी कैन डिफाइन if in above equation c1 equals to c2 equals to so on cn equals to 0 means all constants are 0, then y1 y2 so on yn are linearly independent functions. ओके, आई होप क्लियर है. सिंपल सी बात है, लीनियर डिपेंडेंस का मतलब तो यही हुआ ना कि वी कैन रिप्रेजेंट इफ देर आर ओनली टू फंक्शंस, then if they will be linearly dependent if we can represent one as a multiple of other. ठीक है, सो वही सेम चीज़ है, एंड अगर फंक्शंस है सो उनकी लीनियर डिपेंडेंस विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ सी आई इज नॉट 0. ठीक है, इफ ऑल दीज आर 0 देन these functions will be linearly independent. Same concept will be used even in linear algebra. ठीक है, सो या अब देखो इस चीज को वी कैन कन्वर्ट इनटू Wronskian इनफैक्ट. ठीक है, विल सी फॉर two functions. Let y1 which is a function of x and y2 which is also function of x are linearly dependent. ठीक है, then by definition of linear dependency there exists c1 comma c2 belongs to R such that c1 y1 plus c2 y2 equals to 0.
ठीक है, ओके, where at least one CI is not zero, means either C1 won't be zero और C2 won't be zero, means दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। सो अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, लेट अस कॉल दिस वन, if we differentiate this with respect to x, so this will be c1 y1 dash plus c2 y2 dash, it is equals to 0. Let us call this equation 2, ठीक है। अगर इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में, ये दो इक्वेशंस हो गए हमारे पास, कोई भी दो इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी, वेयर ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज द वेरिएबल मैट्रिक्स, बी इज द और एज साइड जो भी हमारे टर्म है उसके उनसे जो बन रही है कांस्टेंट मैट्रिक्स इनफैक्ट, ठीक है। तो इसको वी कैन राइट लाइक दिस कि y1 y2 y1 डैश y2 डैश, अगर इसको c1 c2 से मल्टीप्लाई किया जाए देन दैट विल बी 0 0, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखो, सो c1y1 प्लस c2y2 इक्वल्स टू 0 और c1y1 डैश सेम इक्वेशंस विल गेट, सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दीज गिवन इक्वेशंस। फर्दर, as c1 and c2 are not zero simultaneously, एक साथ जीरो नहीं हो रही है, इसका मतलब देखो, इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी, ऐसा लिखेंगे। अब ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो रही, देखो, अगर डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉन जीरो होगा, इफ डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो हो जाए तो एन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, that means x equals to a inverse b, पर b तो यहाँ जीरो है, so this will be zero, that will give x क्या हमारा c1 c2 है, so that will be 0 0, means c1 and c2 both will be 0, but that is not the case, इसका मतलब determinant will be 0, ठीक है। so यहाँ से what we can say that this given determinant y1 y2 y1 dash y2 dash, this will be 0, so this is the condition for the dependence of y1 and y2, इसी चीज को वंस्कियन बोलते हैं, ठीक है। तो वंस्कियन ऑफ टू फंक्शंस y1 which is function of x and y2 which is also function of x is defined as y1 y2 and y1 dash y2 dash, देखो, this dash means differentiation, these are just the normal way to represent derivatives, y dash means dy over dx, y double dash means d square y over dx square and so on, ठीक है। कभी कभी यहाँ सब स्क्रिप्ट से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे हमने क्योंकि y1 y2 लिया है, सो वी हैव टू रिसोर्ट टू दिस डैश मेथड, ठीक है। सो दिस इज नोन एज वंस्कियन, दिस इज द वंस्कियन, वंस्कियन, ठीक है। सो वंस्कियन ऑफ टू फंक्शंस इज डिफाइंड लाइक दिस, तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो n फंक्शन का वंस्कियन हमें लिखना है y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn, so this will be n cross n matrix, क्या होगा y1 y2 एंड सो ऑन yn, डिफ्रेंशिएट करो इसको एक बार y2 डैश yn डैश, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा मामला, n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, n-1 टाइम्स y2 n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे yn को भी n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट, इसका जो डिटरमिनेंट बनेगा, दिस इज द वंस्कियन, सो ठीक है, दिस इज द वंस्कियन ऑफ n फंक्शंस, जब दो फंक्शंस थे तो ये था वंस्कियन। सो बेसिकली खुद फंक्शंस आएंगे सेकंड लाइन में, वन लेस डेरिवेटिव, अगर दो है तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर तक जाएगा, यहाँ n है तो n-1 तक जाएगा, इफ देर आर थ्री फंक्शंस देन सेकंड ऑर्डर तक जाएगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आता है, दिस इज द वंस्कियन। तो इसका वही हमने जैसे ड्राइव किया कि y1 y2 एंड सो ऑन yn आर लीनियरली dependent functions if Wronskian of y1 comma y2 and so on yn is equals to 0 for each x belongs to जो भी इंटरवल हम ले रहे हैं जिसके अंदर we are studying these differential equation या these functions, the interval in which these functions are defined, ठीक है।
सो एंड दे आर कंटिन्यूस, ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए, तभी तो वी कुड डू दिस, ठीक है। सो दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन Wronskian एंड डिपेंडेंसी ऑफ फंक्शंस। आई होप क्लियर है, ठीक है। बट देखो ये इफ कंडीशन नहीं है। अगर Wronskian जीरो हो रहा है फॉर एवरी एक्स इन अ गिवन इंटरवल फॉर गिवन फंक्शन, दैट डजंट मीन कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ही सही, ठीक है। इसका विल सोल्व ए क्वेश्चन विल नो। तो ये जरूरी है जानना, ठीक है। सो ऐसे ही ये तो हमने लीनियर डिपेंडेंसी देख ली वंस के में। लीनियर इंडिपेंडेंसी का क्या होगा? देखो लीनियरली इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया कि एटलीस्ट दीज बोथ विल बी जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया इसका। या व्हाट यू डन, या सी, अच्छा दैट इज द क्वेश्चन विल टेक। Or functions of variable x, they are linearly dependent if there exist at least one ci is not zero, right? If all zero, then there will be linearly independent function. अब इसको Wronskian के लिए we have seen this because c1 and c2 are not identically zero, that means this determinant has to be zero, ठीक। अब देखो डिपेंडेंसी के लिए Wronskian का लीनियरली इंडिपेंडेंस में क्या होगा? देखो उसमें अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसमें वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर Wronskian मान लो कोई भी फंक्शन है y1 y2 एंड so on yn, this is not zero for some let's say x nor belongs to the interval I, ठीक है, then given functions are linearly independent in interval I, ठीक है। अब इसमें वही है, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है फंक्शंस तो उसका Wronskian नॉट जीरो होगा, नो। दिस इज इसमें यह है कि अगर Wronskian इज नॉट जीरो देन द फंक्शंस विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये भी इफ कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो देखो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी लेट अस सी दिस क्वेश्चन। अच्छा बिफोर दैट लेट मी से टू थ्री थिंग्स। अच्छा ये जो हमने ये एन फंक्शंस के लिए अगर सेकंड डेरिवेटिव, जैसे मान लो कि हमारे पास ये हमने डिस्कस किया था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई plus y dash qxy equals to rx. This is a differential equation of second order and this is linear differential equation. यहाँ पे these a p q r are continuous functions. They are defined in interval, let us say I. This ax is not zero, ठीक है, for each x belongs to I, ठीक है। then and if y1 and then y1 and y2 are two linearly independent solution of this differential equation, ठीक है। सो देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब जब ऑर्डर टू होता है, जब ये फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो इसमें जो Wronskian वाला कॉन्सेप्ट है वो इफ वाला, इफ कंडीशन अलाउड है इसमें। इफ कंडीशन इज वैलिड, माइंड इट, दिस इफ कंडीशन विल बी वैलिड ओनली व्हेन द ऑर्डर इज टू। when we have more than two functions like 3 4 then it may not be necessarily true, ठीक है। उस केस में सिर्फ ये दोनों कंडीशन होगी कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट तो उनका Wronskian जीरो होगा आइडेंटिकली, और इफ Wronskian किसी भी एक पॉइंट पे जीरो नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, फंक्शंस। बट देखो इस केस में क्या होगा, ये दिस पर्टिकुलर केस जब ये हमारे y1 और y2 जो फंक्शन है दे आर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इन दिस केस there is no such constraint. This y1 y2 and yn are any functions, they may not necessarily be solution of this second order differential equation, ठीक है। so that's the difference इसमें, क्योंकि ये MDR में देख के कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांस है, सो इसको ध्यान से सुना जाए, ठीक है। सो अब देखो इसमें y1 and y2 are two linearly independent solution of this differential equation if, देखो यहाँ पे if कंडीशन है, ठीक है। if Wronskian of y1 y2 linearly independent is not zero, of course, ठीक है।
ये नोट जीरो होगा तभी तो C1 C2 जो होगा आइडेंटिकली जीरो देंगे, ठीक है। सो फोर फॉर ईच x बिलोंग्स टू I, ठीक है। For the differential equation of order 2 of this form, what happens? Linear differential equation of order 2 of this form only, ठीक है। What happens that Wronskian is either identically zero or not zero for all values of x। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ वैल्यू के लिए जीरो है, कुछ के लिए नॉन जीरो है, नो। पूरे इंटरवल के लिए या तो बिल्कुल जीरो होगा या बिल्कुल जीरो नहीं होगा। दैट्स वाई ये कंडीशन इसमें वैलिड है। ऐसे ही इसमें ये है कि अगर y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट देन Wronskian विल बी जीरो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू I, ठीक है। इसी में क्या हो सकता है, फॉर अबव linear differential equation of order 2 if Wronskian of y1 equals to y2 0 for each x belongs to I, then y1 and y2 are linearly dependent, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इफ। आई होप क्लियर है, ठीक है। सो अब देखो, जैसे ये इस क्वेश्चन को अगर अपन करेंगे तो विल गेट की व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, ठीक है। Okay, so this is the question. Let fx is x power 5, gx is x4 modulus x on the interval -1 to 1. Show that Wronskian of function f and g is 0 for every x belongs to 1, 1, ठीक है। तो Wronskian तो दो फंक्शन का Wronskian हमें देखना है, x की पावर 4 एंड ना x की पावर 5 एंड x की पावर 4 मॉडुलस x, इसका Wronskian हमें देखना है, ठीक है। तो देखो, और x बिलोंग्स टू -1, 1 है, जो इंटरवल आई है वो ये है। तो पहले तो लेट अस गेट द Wronskian फॉर x बिलोंग्स टू -1, 0, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग x की पावर 5 एंड माइनस x की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5 माइनस x की पावर 5, और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। सो इसमें देखो x की पावर 5 यहाँ से बाहर आ गया, x 5x की पावर 4 बाहर आ गया वहाँ से। तो ये बेसिकली x की पावर 5 भी बाहर आ गया और 5x की पावर 4 भी बाहर आ गया। तो अंदर रह गया 1, -1, 1, -1। बिकॉज बोथ रोज आर सेम तो इट विल बी ज़ीरो। ऐसे ही अगर Wronskian अपन देखेंगे इसका फॉर x बिलोंग्स टू -0 से 1 तक, तो ये क्या होगा, Wronskian ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग x की पावर 5 और x की पावर 5। तो ये तो हो गया, ज़ीरो ही होगा ये तो भाई। x की पावर 5 ऐसे रखो, दूसरा फंक्शन भी यही है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, again this is 0 because 1, 1 and this is again 1, 1, so this will be identical, rows will be same, so this will be 0, the determinant value will be 0, ठीक है। सो Wronskian is identically 0 for interval x, -1, 1, क्योंकि हमने पहले इंटरवल ये लिया उसमें भी 0 है और 0, 1 लिया उसमें भी 0, सो दिस पार्ट इज डन। f and g आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो, अगर ये देखा जाए, देखो हमने ये देखा था कि अगर Wronskian 0 है, ये देखो Wronskian 0 वाला कहाँ है पार्ट, या इफ Wronskian 0 देन y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। अब पर देखो इसमें जो कैविएट है वो ये है कि ये तभी पॉसिबल है जब y1 एंड y2 आर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। पर यहाँ पे वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है। जो हमें दो फंक्शन दिया है, दे माइट नॉट बी सॉल्यूशन ऑफ दैट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो दैट रूल कांट बी अप्लाइड देयर, ठीक है। in one part is that only if interval is taken will, okay, that is not there,
सो देखो सेकंड देखना है हमें कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे पहली बात तो वंस्कियन वाला कॉन्सेप्ट वी कैन नॉट अप्लाई, बिकॉज वंस्कियन में अगर लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस है तो वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर ए जनरल फंक्शन नॉट ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उससे ये हम ज़रूर बोल सकते हैं कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है मीन्स वंस्कियन जीरो है, दैट डजेंट इम्प्लाई एनीथिंग, ठीक है। पर अगर लीनियर डिपेंडेंट फंक्शंस है तब वंस्कियन जीरो होगा, दैट इज ट्रू, बट द रिवर्स कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे वंस्कियन जीरो से वी कैन नॉट कमेंट कि फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। अब देखो लीनियर डिपेंडेंस विल रिसोर्ट टू द ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। सो एफ एंड जी, ये द सेकंड पार्ट, जी will be linearly dependent if there exists C1 C2 belongs to R such that C1F plus C2 G equals to 0 and C1 नोट 0 और C2 नोट 0, कोई भी एक 0 ना हो, ठीक है। तो देखो इसमें C1F क्या है, x की पावर 5 प्लस C2 वो क्या है, x की पावर 4 मॉडुलस x इक्वल्स टू 0। दिस शुड बी वैलिड फॉर ईच x बिलोंग्स टू द इंटरवल जो कि -1 से 1 के बीच में। अब देखो जब -1 से 0 ली जाए अगर x, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, C1 x की पावर 5 प्लस C2 और x की पावर 4 और मॉडुलस x हो जाएगा -x, बिकॉज यहाँ पे x नेगेटिव है, सो दिस इज 0। भाई मॉडुलस x इज नथिंग बट x when x is greater than equals to 0 minus x when x is less than 0, so we are applying this definition here। अब देखो क्योंकि x रेज टू पावर 5 जो है उसमें तो ये -1 से 0 के बीच में x कैन नॉट बी 0, दिस इम्प्लाइज दैट C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर x बिलोंग्स टू 0 से 1 लिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, x ये जो मॉडुलस x से सिंपल x हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा C1 प्लस C2 x की पावर 5 इक्वल्स टू 0, पर x की पावर 5 इज नॉट आइडेंटिकली 0 फॉर दिस इंटरवल, x तो 0 1 हाफ कुछ भी है, तो दिस इज 0। तो ये दोनों एट ए टाइम होल्ड करेगी बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर द फुल इंटरवल, तो ये तभी पॉसिबल है। इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो C1 0 आ गया और माइनस करेंगे तो C2 0 आ गया, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू 0, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है, दिस इज 0 ओनली व्हेन C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो f एंड g आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस, आई होप क्लियर है, ठीक है। सो सेकंड पार्ट क्या था, आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, या दे आर नॉट, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन फैक्ट। इफ इंटरवल इज टेकन -1, 0 विल f एंड g बी लीनियरली डिपेंडेंट, नो, या देखो ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, x अगर -1 से 0 के बीच लिया जाए तो जो हमारा f है वो तो x की पावर 5 हो जाएगा और g जो है वो -x की पावर 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे f प्लस जी करेंगे तो ये 0 आ गया, जिसका मतलब दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो C1 इज नॉट 0, C2 इज नॉट 0, हमें तो सिर्फ एक C1 नॉट 0 चाहिए था, सो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। सो इंटरवल का भी खेल है ये, ठीक है। In fact, these functions are linearly independent in interval -1, 1, but they are linearly dependent in -1, 0. और ऐसे separately if we take 0, 1, then also they will be linearly dependent, ठीक है। So this is the thing, and this अगर ये भी पूछा जाए कि क्या ये वंस्कियन का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाई करता है ये लॉजिक, नो नो, it doesn't defy that, because वंस्कियन जो if condition है, if and only if condition, that is valid only if these two functions are solution of सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो हमने डिस्कस की, ठीक है, जहाँ पे ए एक्स इज नॉट 0 एंड ऑल दोस। सो आई होप ये क्लियर है। सो दिस इज द थिंग, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेट मी गिव अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। टेल मी अबाउट इट इन कमेंट sections the solution for this। Let's say f is taken as x cube and g is taken as
एक्स स्क्वायर मॉडुलस एक्स एंड लेट से एक्स जो इंटरवल है -1 से 1 है। तो इसमें फर्स्ट इज कमेंट ऑन लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ एफ एंड जी। सेम डिक्टो क्वेश्चन हो गया, इनफैक्ट उससे आसानी हो गया, ठीक है। सेकंड, फाइंड वंस्कियन ऑफ एफ एंड जी, ये क्या होगा, विल इट बी आइडेंटिकली जीरो। थर्ड, okay, third what we can say on same thing, check linear dependency of f and g in interval 0, 1। ठीक है, आई हैव क्लियर है, तो सेम कॉन्सेप्ट से सब होगा। अब देखो, अब एक चीज़ और जो कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में विल यूज विदाउट एनी प्रूफ इनफैक्ट, ठीक है, वेरी बेसिक थिंग। इफ y1, y2, so on, yn are linearly independent solution of differential equation, let's say y n times differentiable है, इसका मतलब ये हो गया yn here means dny over dxn, ठीक है, differentiating y with respect to x n times, ठीक है, yn x plus let's say some a1 y n minus 1 plus a2 y n minus 2 and so on, ठीक है। एन फंक्शन मान लो यहाँ पे एन इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, सो देयर विल बी एन linearly independent solution for this, ठीक है। so if these are the linearly independent solution of this differential equation, then y equals to c1 y1 plus c2 y2 plus so on cn yn is also solution of given ordinary differential equation, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। तो ये देखो, अगर इसको इसमें पुट करेंगे तो ये जीरो हो ही जाएगा। कैसे हैं देखो, अगर दो के लिए स्पेशल केस ले लेते हैं इसका, अगर मान लो y को c1 y1 प्लस c2 y2 लिया जाए, तो और मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये है, मान लो y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू आर एक्स। मान लो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके सॉल्यूशन y1 एंड y2 है, इसका मतलब y1 डबल डैश प्लस p y1 डैश प्लस q y1 इक्वल्स टू r, ये होगा। y2 भी इसका सॉल्यूशन है, सो दैट विल आल्सो सेटिस्फाई दिस y2 डैश प्लस q y2 इक्वल्स टू r। तो अब देखो, इसको अगर c1 से मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, c1 से कर दो मल्टीप्लाई। ऐसे ही इसको c2 से कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, c2 से कर दो, ठीक है। और अब इसको अगर ऐड कर दिया जाए, इसको ऐड कर दिया जाए तो ये क्या होगा, इसको ऐसा कर सकते हैं ना, c1 y1 प्लस c2 y2 डबल डैश, दोनों को ऐड करो तो ऐसा लिख सकते हैं, प्लस p को बाहर ले लो, ऐसे अगेन c1 y1 प्लस c2 y2 का डैश प्लस q को बाहर ले लो, c1 y1 प्लस c2 y2 इक्वल्स टू r को ले लो बाहर, c1 प्लस c2 आएगा, तो उसको यहाँ से डिवाइड कर दो क्या, या नो, इसको हमें सिर्फ ये जो आर एक्स है इसको जीरो लेना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, या y कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। लेट्स से an माइनस 1 y, ये है हमारे पास, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आर एक्स को मैं जीरो लेना पड़ेगा,
ठीक है, दिस इज जीरो, तो यहाँ पे तो ये जीरो ही हो गया। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट दिस सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो अगर y1 y2 और yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें कि कांस्टेंट टर्म नहीं है इधर, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इन्वॉल्व होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, और इस साइड में जीरो है। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री होमोजीनियस इक्वेशन। इनफैक्ट दिस इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, और जब ये आर एक्स जो है इधर, when this is not zero, then we say that this is a non homogeneous equation. So जो हमने ये solution डिस्कस किया, this is valid for homogeneous part only। ठीक है, so what I am trying to convey here is this। ठीक है, जो इक्वेशन हमने लिखी है, this equation, this is homogeneous equation। ठीक है, so for a homogeneous equation, let us denote this by some, let us call this 1। ठीक है, for homogeneous equation 1, y equals to c1 y1 plus c2 y2 plus so on, cn yn is also solution of it। ठीक है, and it is known as complementary function। ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने ये yn प्लस a1 yn माइनस वन सो ऑन an माइनस वन y इक्वल्स टू, लेट अस कॉल rx। ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, बिकॉज इस डिफरेंशियल इक्वेशन में व्हेन वी पुट rx इक्वल्स टू जीरो, देन जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है दैट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हेन rx इज नॉट जीरो, देन वी से दैट दिस इज ए नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस। ठीक है, व्हेन वी पुट rx इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और इसका ही पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इफ y नॉर इज solution of differential equation yn plus a1 yn minus 1 plus so on an minus 1 y equals to rx। ठीक है, then y nor is known as particular integral of this differential equation। ठीक है, particular integral of this, जहाँ पे rx is not zero। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ above नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, दैट इज c1 y1 सो ऑन प्लस cn yn प्लस y नॉट। आई होप क्लियर है। ठीक है, सो अच्छा, इसके लिए ये वर्ड और यूज करते हैं, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। जो हमारे पास y1 y2 एंड सो ऑन, ये yn, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनका जो सेट बना है, इसको दिस आल्सो नोन एज फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन बनता है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, सो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसमें दो चीज़ होगी। पहली चीज़ तो व्हाट विल डू, उसका जो rx पार्ट है उसको विल पुट जीरो, तो वो उसकी होमोजेनाइज डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। उसके जो सॉल्यूशन होंगे दैट विल बी नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि rx जीरो नहीं है। फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन आएगा उसको विल से पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, दोनों का सम विल बी द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा। ठीक है,
तो पहले we'll see complementary function, then we'll see the particular integral, then we'll sum them up and it will give the desired answer. I hope ये समझ में आता है. So ये पूरा theoretical चीज़ें होगी. ठीक है. अब from next lecture we'll discuss the how to solve differential equation and all those stuffs. So now all will be easy things in fact and interesting things. Okay, so till then, bye bye, take care.